Maddock has been built with small town stories, middle class stories. And there was this whole theory going out like that the audience doesn't want to watch films like this. So, films like Hindi medium, Bala, Luka Chupi would not be as relevant in theaters. So I'm just personally very, very grateful because we can make films like this thanks to y'all. And a big shout out to all of y'all because you've taken this really beautiful middle class couple, Soumya and couple, and made the audience feel connected to them. And that's why we've done so well. So I thought the best thing is to celebrate the film with you. But who I'd like to speak about today is Lakshman Uttekar. How do I start? So his reference of his stories is life, not films. And I think he's on a hat trick. This is his third hit, which is fantastic. And he is as simple and more connected to India than most people in Bombay. And I just feel I want to thank him because this is his third film with us, his third hit film with us. And I just want to tell him that I'm really grateful he's part of our family. And he's given this really special film. My entire family, I used to live with 25 people. I saw the film with all of them. And it was amazing. It kind of reminds each one of them of moments you've had. And that moments he's built. So everything you see in his film is somewhere from a window in his life. And he's like one of us in the life he's lived. So thank you very much, Lakshman. Thank you, Vicky. Like I told you, Vicky is I always tell him he's one of the best actors I've worked with. We all know that. But he's an amazing human being and he's a team player. And I think he looks at every scene like it's important. He's not trying to be the best. He's trying to make the scene the best. And there are very few actors like you who do that. So thank you, Vicky. And this is our first with you. My little godchild, Sara. We all know, like in her Darshako style, she's quite funny. But I feel so proud that so many people have called and told me that you have such great comic timing. And also the fact that you can be quite a strict wife. So thank you very much. And it's, I've had a beautiful journey with your father. And we've done some really good films together. And I'm very, very happy that the legacy continues. So thank you. I want to give a big shout out to my entire Maddock team. There's Sharda and Pooja who've actually made this film. She found the story and Pooja ran the film. And she's been with me for 20 years. She's been with me from college. And this victory is as much hers as mine. I'd like to thank my marketing team, Nikita, Sonali, Priyanka. The way they've positioned this film and made it our story, kudos to them. And they want to thank the photographers because y'all have put such beautiful pictures of Soumya and Kapil that people have wanted to watch the film. And thank you very much for that. Who else am I forgetting? Sachin, Jigar and Amitabh, without which this album would not be what it is. If you have music like that, to aur kya chahiye? And the entire crew. I have never thanked so many people in my life. But I'm just very, very grateful that Maddock can continue and make stories like this. So eternally grateful and thank you very much. First of all, thank you so much. आप लोग यहाँ पे आए और हमें इतना प्यार दिया, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को बहुत ही अच्छी नज़र से देखा है, ज़रा हटके देखा है, और तो वो दिख रहा है सब जगह पे. Thank you to Vicky and Sara for actually putting soul in Soumya and Kapil. मतलब उनको जिंदा किया आपने स्क्रीन पे और वो दिख रहा है. आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों की जो स्माइल है एक दूसरे के लिए या गुस्सा एक दूसरे के लिए, वैसे लगता है कि मिडिल क्लास के हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं या प्यार कर रहे हैं. और वही वजह है कि इस फिल्म पे सब लोग बिलीव कर रहे हैं. बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा दिनू सर को एक्चुअली, क्योंकि 15 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था कि सर कॉपी रेडी हो जाएगी. मैंने कहा हो जाएगी. कितने दिन में? मैंने कहा 10 दिन में. 8 दिन में हो जाएगी. मैंने कहा वो भी हो जाएगा. एंड 15 दिन में फिल्म को रिलीज करना, मतलब क्या था मुझे समझ में नहीं आया. फिल्म अच्छी बना सकते हैं, मैं बना लेता हूँ वैसे. बट उस अच्छी फिल्म को उसका जो ऑडियंस है उन तक अच्छे से पहुंचाना एक टास्क है, जहाँ पे एंटायर इंडस्ट्री सोच रही थी अरे कौन सा 15 दिन में क्या होगा, अरे वो तो डेट मिल गई इसलिए कर दिया, अरे ऐसा कौन सा होता है, ऐसा कौन सा. सबके मुंह चुप हो गए. एंड सीरियसली थैंक यू सर फॉर दिस, बिकॉज आपने थिएटर्स के दरवाजे खुले कर दिए ऑडियंस के लिए.
जहाँ पर लोग समझते थे कि सिर्फ बड़ा कैनवास चलेगा, ग्रैंड फिल्म चलेगी, वहाँ पे अच्छा कंटेंट भी थिएटर में चल सकता है, ये आपने प्रूव कर दिया। एंड सीरियसली इट्स अ बिग चेंज इन द इंडस्ट्री। मतलब आज भी सारे चुप है क्योंकि किसी को पता नहीं हो क्या रहा है। बोल रहे हैं 1 पे 1 फ्री दिया इसलिए चल रहे। अरे भाई, अगर सड़े हुए टमाटे आप बेचो और बोलो 1 किलो पे आधा किलो फ्री है, कुत्ता लेगा क्या? नो, सीरियसली सीरियसली नहीं लेगा। जब माल अच्छा हो तो फ्री नहीं भी दोगे तो भी लोग लेंगे, है ना। अच्छा पानी पीने के लिए लोग कुएं के पास आते हैं, लेकिन पानी में गंध हो तो कौन पिएगा? तो हमने फिल्म अच्छी बनाई, और जिस तरह से दिनू सर ने इस फिल्म के लिए दरवाजे ओपन किए, जिस जिस दौर में हम लोग चल रहे थे, जो थिएटर्स की हालत थी, उस हालत को उन्होंने चेंज कर दिया। एंड सीरियसली सर, एक अच्छी फिल्म बनाना अलग बात है, बट एज अ प्रोड्यूसर उस अच्छी फिल्म को, उसका जो हकदार ऑडियंस है, उनके तक पहुंचाना अलग बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। नोबडी एल्स कैन डू इट इन द इंडस्ट्री, सीरियसली सीरियसली। एंड एंटायर मार्केटिंग टीम, शारदा, एवरीवन, मतलब 15 दिन डे नाइट आप लोगों ने जो काम किया है। मुझे तो कोई पोस्ट भेजता था तो मैं इंस्टा पे डालता नहीं था, इतना लेजी हूँ। वो सोनाली पीछे पड़ती थी, पोस्ट नहीं डाला, पोस्ट नहीं डाला, मैं डाल दूंगा। लेकिन आप लोग का डे नाइट के जो एफर्ट्स है, और सौम्या, कपिल, आप लोग जहाँ जहाँ जाके पानी पूरी क्या 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 खा रहे थे, भाई साहब कमाल। मतलब सीरियसली सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, बट थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, ओ हाँ, माथा बहुत बहुत जगह। ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है मैं कहाँ से शुरू करूँ। दीनू सर का फ़ोन जब मुझे आया था तो मैं केदारनाथ में थी अपने दोस्तों के साथ और छुट्टी मना रही थी, और तब उन्होंने मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी पिक्चर में बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। और मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरी डेब्यू फिर से होने वाली है, क्योंकि इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना, ऐसा लगा कि जेन्युइनली एक सपना जैसा हो गया था। मैं बहुत बार पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के बाद सोचती भी थी क्या वो दिन वापस आएगा जब मैं बड़े पर्दे पर अपने आप को देखूंगी। इंट्रोड्यूसिंग सारा अली खान तो याद है, लेकिन स्टारिंग सारा अली खान, फीचरिंग सारा, ये क्या मतलब, वाज आई इमेजिनिंग इट और विल इट एवर रियली हैपन अगेन? और आई रियली बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। और इतनी अजीब बात है, मेरी पहली फिल्म केदारनाथ थी, मैं केदारनाथ में थी और दीनू सर का फ़ोन आया मुझे कि ये फिल्म मैं बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट so thankful, so grateful to him for giving me this. Honestly, I think it's a debut again because it's been half a decade almost. I shouldn't age myself like this. Anyway, it's been a while. And really, thank you very, very much, sir. Thank you so much. Thank you to the media. Thank you to the audiences for accepting what we've given you. Thank you so much, Lakshman sir, for giving me Soumya. Thank you so much for making me understand where she comes from. Thank you so much for fighting with me for wearing bindis, because you are right, I look better when I wear the bindi that I didn't want to wear. Thank you for just everything. Really, truly thank you. And thank you, Kapil, for making Soumya come to life. And thank you, Vicky, for calming Sara down. You have just been the most superb partner in this entire journey. I think that it's been just outstanding to be with you, to work with you. And I don't want to talk about how talented you are because everybody knows that, but you are so humble, so gracious, and so giving. From नहीं सच में यार, मतलब सही बोल रही हूँ यार, तेरी कॉफ़ी से लेकर तेरे एक्टिंग तक सब शेयर करते हो, which is I think great. So thank you very, very much. And again, thank you to the marketing team. Thank you to everyone, but mainly and mostly, thank you to the audiences. Thank you so much for accepting our film. मैं तो कभी नहीं मानती थी कि सिर्फ बड़ी फिल्में चलती हैं, मुझे हमेशा से यही लगा था कि सच्ची फिल्में चलती हैं। तो थैंक यू कि आप लोगों ने हम लोगों में अपने आप के अंदर जो विश्वास है वो वापस जगाया, उसके लिए बस थैंक यू वेरी मच। यार ये 3
लंबे लंबे स्पीचेस के बाद मुझे बड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे कुछ बहुत डीप कुछ बोलना है, पर सच में बस हमारा यहाँ पे आज ये आपसे मिलने का और आपके ज़रिए लोगों से मिलने का इंटेंशन यही था कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म की जर्नी जो ऑडियंस के साथ शुरू हुई थी वो इसी जगह पे शुरू हुई थी जहाँ पे हमने ट्रेलर दिखाया था और तब भी आप शामिल थे। और आज जब वी आर स्टैंडिंग हियर और यहाँ कन्फेटियाँ फट रही हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि एक पिक्चर सिनेमा घर में चली है और एक ऐसी पिक्चर सिनेमा घर में चली है जो जब ट्रेलर आया था तो लोग कह रहे थे अरे ये तो प्राइम एग्जाम्पल है, ये तो OTT पे आनी चाहिए थी, तो वो अब सिनेमा घर में चल रही है, तो उसका हम थैंक यू करने के लिए आज यहाँ साथ में आए हैं। तो मुझे बस लग रहा है कि इसमें हमसे ज़्यादा ऑडियंस की जीत हुई है और ऑडियंस हैज़ ट्रूली शोन दैट उनका पावर उन्हीं का पावर है। एंड यू नो लाइक आई थिंक amongst all of us the most confident was Lakshman sir always because he kept saying sir मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मुझे पता है ये लोगों तक फिल्म कहानी पहुंचेगी, ये हर इंसान इस देश में ये कनेक्ट करेगा, पिक्चर कितनी चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता पर कनेक्ट जरूर करेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने कनेक्ट नहीं किया। सो थैंक यू सर उस कॉन्फिडेंस के लिए। और मुझे अभी भी याद है जब सर ने फ़ोन किया था और हमें फिल्म नरेट की थी, दैट वाज राइट आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ कोविड, जहाँ पे बहुत सारा तनाव था और बॉलीवुड का क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में आ रही है नहीं आ रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार ये कहानी हमने जी है और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट ज़रूर करेगा। और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया, अब ये फिल्म आ गई वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही, ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही। वो सब के बीच में हम कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट ज़रूर करेगी। और वो पिछले 5 दिनों में ना हमने वो वापस फील किया कि हाँ यार ये हम पहले मीटिंग में बोल रहे थे कि यार कनेक्ट ज़रूर करेगी, और वो जब आज कनेक्ट कर रही है वो हमारे लिए ये नंबर से भी ऊपर की बात है। तो आज सिर्फ हम थैंक यू बोलने आए हैं आप सबका, और जेन्युइनली थ्रू आवर लवली मीडिया वी रियली गॉट टू इंटरैक्ट विद द होल नेशन। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है और कई बार मतलब कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ, बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से। और ऐसी आई थिंक यहाँ पे शुरुआत हुई थी पर ये एंड नहीं है, ऐसी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे इस फिल्म के साथ और लोग जुड़ते रहें ज़रा हटके ज़रा बचके के साथ सिनेमा घरों में, यही हमारी आशा है। एंड बट सारा थैंक यू टीम को भी, बट ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रियली जेन्युइनली, मैंने फ़ोन पे तो बहुत बोला है डीनू सर को, बट आई वॉन्ट टू say this today on this stage that I am so grateful to him because he had every logical reason to bring this on the OTT platform, and he would have been completely correct in everybody's eyes, but he took that risk of bringing a film like Zara Hatke Zara Bachke in the cinema halls in today's time, and sir दिल से thank you है। हमारे इस फिल्म में 10 रुपए नहीं लगे हैं, आपके सारे पैसे लगे हैं to take that call एंड जेन्युइनली। एंड मुझे पता है कि पिछले जैसे लक्ष्मण सर ने बोला कि जब ये डेट हमें मिली थी और हमने डीनू सर ने डिसाइड किया 2 जून को आना है, उसका म्यूजिक कैसे बनेगा, पोस्टर ट्रेलर कहाँ कहाँ जाना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब आवरली बेसिस पे डिसाइड होता था। डीनू सर हैज बीन सिटिंग इन हिज ऑफिस टिल 3 AM in the morning with his superb team at Maddock to kind of figure out कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसी भी एक फिल्म आ रही है और प्लीज़ मौका दीजिए इस फिल्म को। बट थैंक यू मैडॉक, थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू डीनू सर, एंड थैंक यू सारा। मैं पहली बार काम किया है और मैं आजकल जहाँ भी जाता हूँ मैं नमस्ते दर्शकों बोलता हूँ और 5 दिन प्रमोट करूँगा मैं नॉक नॉक बोलने लग जाऊँगा। बट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट सोल्स आई हैव एवर इंटरैक्टेड विद। शी इज़ वंडरफुल एंड ये जैसे लोगों के साथ जुड़ती है, बहुत जेन्युइनली जुड़ती है और वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई पर्दे पर भी दिखती है, चाहे वो सौम्या हो चाहे इसका कोई भी किरदार हो। ये मुझे इतना पता है कि सारा हमेशा मतलब लोगों को पसंद आएगी और वो जुड़ती रहेगी बिकॉज इसकी सच्चाई बहुत बोलती है और इसकी आंखों में बोलती है। सो प्लीज कीप दैट इंटैक्ट ऑलवेज। बट थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू सो मच।
ज़रा हटके ज़रा बचके से सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ये थिएटर में चली है. इट्स वेरी पर्सनल. सारा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के लिए कौन सी मिली है इस फिल्म को लेकर? कहीं पढ़ा था सारा अली खान इज बैक. आई डोंट नो व्हाई, वो सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गई थी. बहुत बहुत ज़्यादा याद आ गई थी. और हाँ, मम्मी और भाई का रिएक्शन पर्सनल था, बट दिस वाज नॉट पर्सनल. आई थिंक इब्राहिम्स रिएक्शन. इब्राहिम तो द वे ही इज वॉकड आउट, इब्राहिम मेरे साथ ज्यादा चिपकता विपकता नहीं है. विकी ने मुझे भेजा एक्चुअली, कहीं मीडिया में हमारी वीडियो आ गई थी यार. एक फोटो आप लोगों ने ली थी इन दोनों और की, वो कितनी प्यारी फोटो थी यार. मतलब मेरे भाई के बॉडी लैंग्वेज में गर्व शायद मैंने बहुत समय बाद देखा है, वरना मुझे बड़ा अच्छा लगा था. दूर इब्राहिम दूर से होता, अरे हीरोइन वहाँ पे, उधर जा. Very adorable photo. Vicky, you are ruling over internet with your sexy moves, dance moves especially, you know, you're trending. And comments में आ रहा है कि which god did Katrina Kaif pray to? ऐसे comments आ रहे हैं. You are the new चिकनी चमेला. इस डांस पर उनका कोई रिएक्शन आया? उन्होंने ये डांस देखा है, उनका क्या रिएक्शन था? अरे उन्होंने इनको कोरियोग्राफ किया. प्लीज बताइए. नहीं, उन्होंने देखा है और उनको भी अच्छा लगा. लक्ष्मण जी, इधर आप जी सर, क्या आप एग्री करते हैं कि एक फिल्म के हिट होने में संगीत की बहुत बड़ी भूमिका? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा. हिंदी सिनेमा बगैर संगीत के कुछ है ही नहीं. मतलब जिस तरह की सिनेमा हम बनाते हैं विदाउट म्यूज़िक कुछ है नहीं उसमें. मतलब हमारी दुनिया का सिनेमा अलग है और हिंदुस्तान का सिनेमा सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हमारा म्यूजिकल सिनेमा रहता है. तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंस है सर. इस फिल्म में बड़ा महत्व दिया आपने म्यूजिक को. जी जी, अच्छी बात है. बिल्कुल. इनकी हर पिक्चर में म्यूजिक एक्चुअली अच्छा रहा. या Guys, Hi Vicky, hi Priyanka this side. Hi Priyanka. Many congratulations to you and the Thank whole you. team. Vicky, you know, you spoke about the whole skepticism which was before the film released, and even Lakshman spoke about it. But personally, as an actor, were you told in the last few months that do big films? You know, your last was on OTT, Govinda Naam Mera. You know, you've done Uri, the numbers that it has done. You know, abhi big films ka zamana aa gaya hai. So as actor, you know, push yourself for it so that you're positioned that way. Because, of course, this is now a slap to all the skepticism, and I think a lot of us also had that, I would definitely say. But for you as an actor, were you told that by people? I think we were going through a time where a lot of things were being told, depending on each film that came out. कब कुछ चलती थी तो कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर कुछ दूसरी चलती थी फिर कहते नहीं ऐसा होना चाहिए. तो आई थिंक हर तरीके के ये बातचीत होती थी कि नहीं यार ऐसी कोई सिनेमा चूज़ करो या वैसा कुछ सिनेमा चूज़ करो. बट इवेंचुअली इतने कैलकुलेटिव माइंड से कभी होता नहीं है, वो दिल से ही कनेक्ट होता है. जैसे ज़रा हटके ज़रा बचके ऑल्सो was narrated to us at a time where it was not the most wisest decision कि अच्छा ये स्केल की फिल्म करो या ऐसी फिल्म करो, इसका सैचुरेशन आया है ये वो बहुत सारा एक बहुत ना वो साइंटिफिक अप्रोच भी होता है. बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स आई थिंक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, यू हैव टू गो बाय द कन्विक्शन ऑफ योर डायरेक्टर, द विजन ऑफ योर प्रोड्यूसर कि ये क्या कहानी कहना चाह रही है और आप अपना काम फिर सच्चे दिल से कीजिए. तो ऑफ कोर्स टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑल दीज chatters have been going and they're still going on and they will keep changing with every film that works and that doesn't work. But I think as an actor, when you end up choosing a film, it's a very, very personal process as to how it affects you personally as an audience first. So, yeah. So, for that, I'll take full responsibility because मेरी रात भर shoot थी जो अभी 1 घंटे पहले खत्म हुई है, तो वो बिना सोए आया हूँ. पर वो शूट की वजह से मैं लेट हो गया और उस वजह से everybody got late and you had to wait. But so sorry, it was only because of a shoot that couldn't get finished in the morning. No, absolutely. I just wanted to like say on behalf of the media. And Thank now you. I'll just ask my question first. हाँ जी. So Lakshman sir, like you have given 3. पहले डांट दो फिर सवाल पूछता हूँ. एक्चुअली हर एक फिल्म क्लोज रही है, मतलब काफ़ी करीब रही है. जब तक दूसरी की शुरुआत ना करो तब तक पहली क्लोज ही होती है और जैसे दूसरी की शुरुआत हो जाती है वो क्लोज होने लगती है. तो अभी इस वक्त ज़रा हटके ज़रा बचके यस डेफिनेटली काफ़ी क्लोज है क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि वो कपिल मैं ही हूँ, क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया है उसमें,
मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफ़ी करीब है क्योंकि चल भी रही है, और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती है नहीं, बट या इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं। और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था तारीफ की है क्या, बोलते गाली दी है। तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांद्रा से बाहर निकल के ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मानखुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो, यहाँ पे यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं। तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने ही जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखो क्या हो गया, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे। दैट मीन्स एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. But you're not understanding. You're just putting your own perspective and trying to spoil that film. That is not right. And you shouldn't do that. And that is the reason why we are going through all this, the Bollywood. क्योंकि जब साउथ की कोई फिल्म आती है, छोटे बजट की फिल्म, जिस हीरो को हम जानते भी नहीं, वहां पे वो सुपरस्टार होता है, हमारे लिए न्यू कमर होता है, वाह 5 स्टार 4 स्टार, अच्छी फिल्में होती है। भाई हमको भी जरूरत है, we have to get our industry right. तो I think we should, मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से है, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले। क्यों नहीं चले? मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोस, और वो 4-4 लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है। भाई क्यों? इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है। दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, वो गैप कम करो। मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए। थैंक यू। हाँ जी। हाय विकी। हाय विकी। योर स्ट्रेट सेंटर। Oh, hi ma'am. Hi, this is Titash from News 18. Hi Titash, hi. Hi. So Vicky, it's very interesting. So in Love Per Square Foot, we saw you faking a marriage actually to get a house, and here you're faking a divorce to have a house of your own. In real life, कभी पापड़ बेलना पड़ा to have a house of your own? Anything interesting? मुझे जब तक घर मिलेगा नहीं, मैं पिक्चरों में ढूंढता रहूंगा। But real life में तो God has been really kind. But yeah, I don't know if I've answered your question or what the question was. Hello. Hi Vicky and Sara here. Hello. Ravi from ABP News. Hello. फिर से जनता को खुश करने का मौका, मेरे लिए सफलता वो होती है। और just I think that's about it. I think the idea is to take your work seriously and not yourself very seriously. That's the attempt. We've been seeing you dancing to the song Obsessed. तो बाकी आपके फैंस और ऑडियंस के सामने आप कर रहे हैं, तो हमने क्या गलती की है? प्लीज़ हमारे लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मैम, मैं एक बात बताऊं, मैंने अगर एक और बार उस गाने पे कर दिया ना, मैं इंटरनेट पे बैन हो जाऊंगा। बट हमारे लिए एक बार तो चलता है। वो मैं लाइव, वो हम बाद में बाहर कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, पहले आप ट्रेंड करते हो, फिर आप बहुत ट्रेंड करते हो, फिर बहुत ट्रेंड करते हो, और फिर गाली पड़ती है कि तू इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये पका रहा है, अब नीचे आ जा। तो ना अब मैं वहाँ से हूँ कि अब ये नीचे खींचा जाऊंगा, तो अभी मैं सच में बैन हो जाऊंगा, मेरा अलग से बॉयकॉट चलेगा, उसके बॉयकॉट ऑब्सेस। तो ना तो आई प्रॉमिस यू आउटसाइड, मैं पॉपकॉर्न दूंगा आपको, मैं आपके लिए स्पेशली डांस करूंगा, है ना, पर यहाँ पे नहीं करते। सर मेरे लिए हर फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है, और ये मैंने ज़रा हटके ज़रा बचके से जाना है, बिकॉज इससे पहले ना मुझे कभी थर्सडे रात को नर्वसनेस नहीं होती थी। इससे पहले मुझे इस बार थी, और नर्वसनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कल क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, अगर आएंगे तो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, तो बहुत सारे सवाल थे। एंड आई रियली कुडंट स्लीप दैट थर्सडे नाइट, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। सो आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द फेज वी आर इन, जहाँ पे थिएट्रिकल का थोड़ा सा एक
ये है कि लोग थिएटर में क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं वाला जो सवाल चल रहा है, जिसका जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चक्कर में इस बार वैलिडेशन की बहुत भूख थी, वो लोगों से थी कि लोग आए देखें। अगर जब कुछ मिलिट्री फिल्म होती है जैसे उरी थी, तो मेरा सबसे ज़्यादा भूख वैलिडेशन ये थी कि आर्मी वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज जब उनसे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ यार यू डिड अ गुड जॉब, तो मुझे बहुत वो एक तसल्ली मिली थी। तो आई थिंक विद एवरी फिल्म देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग। ऑब्वियसली जो सच्चाई से आपको आपकी फैमिली बोल देती है कि इसमें ठीक था या इसमें नहीं था, वो तो एक अलग है ही। कि जब फैमिली बोल देती है कि हाँ यार इसमें ठीक था, आपको पता है कि सच में कहीं ना कहीं ये करेक्ट नोट हिट हो ही गया है, तो वो वैलिडेशन तो परमानेंट ही है जो आपको हमेशा चाहिए होती है, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट एंड योर हार्शेस्ट क्रिटिक। बट अदरवाइज फॉर मी पर्सनली इट डिफर्स इन एवरी फिल्म अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमारी नीयत सिर्फ पिक्चर बनाना है, और हमें बहुत मज़ा आता है पिक्चर बनाने में। And I think ordinary is, I have lived an ordinary life. So ordinary is extraordinary today. We all extraordinary. And I think जो हमारी पिक्चरें वो आपको वो फील कराती हैं। जैसे मैम आपको याद है आपने मुझे बोला था मिडिल क्लास के बारे में, आपने देखी, करेक्ट थी ना? हाँ जी, हाँ करेक्ट थी। आज मुझे इतना अच्छा लगा आपने अपना माइक मुझे दे दिया करते। माइक 1/2। बट मैम मैं इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन द ओनली इमोशन हम देखते हैं कि रात को सपोज आपने एक पिक्चर सुनी, यू हैव टू बी एबल टू नॉट मेक दैट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आपको बनानी है। हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि ये लॉजिकल है आज विक्की और ये सेट हो रहा है, वैसे नहीं बनाते। हम कहानी पिक करते हैं, एंड ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट द नियत। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Thank you, Dinu sir. Sarah ma'am. My question is to you. I'm sorry. Sorry. There is Sarah ma'am still has to say. का मौका नहीं मिला। I think so for me, honestly मेरे लिए हमेशा जनता की राय, जनता का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा है। तो आई थिंक अगर वैलिडेशन की बात हो तो विकी ने बहुत सही तरह से कहा कि ये जो थर्सडे था, मेरे लिए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चारों रात नींद आनी बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तो दीनू सर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था भारत दर्शन का, और उसके बाद जो घंटे मिलते थे, मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। पर आई थिंक दैट अल्टीमेटली हम सब फिल्में जनता के लिए बनाते हैं, और उनका प्यार ही सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। संडे रात को जब विकी और मैं उस थिएटर के अंदर गए और हाउसफुल थिएटर देखा, हम लोगों ने परिवारों को साथ देखा, खुश देखा, हमें देखते हुए खुश देखा, आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। Thank you members of the media, बहुत शुक्रिया आपके questions के लिए, thank you so much. Yeah. Okay, Dinu sir. Yeah, okay. One last question. Working. Hello. Yeah. One last question. I personally enjoy the chemistry you guys shared on screen, so kudos for that. I want to ask that off screen, when was the point you all got comfortable? Because there was a lot of romance you all played on screen. See, the most beautiful part about Sara is that there is no ice. वो ice break करने के लिए ice चाहिए होता है ना, यहाँ ice नहीं होता है, तो आपको कुछ break ही नहीं करना होता है। ये आपका जो पहला नोट है ना सारा का, जब वो मिलती है वो ऐसा लगता है कि 7 साल से आप दोस्त हो, तो वो पहले मिनट ही ऐसे मिलती है आपसे। So that is, हाँ, तो that is one of the most beautiful things about Sara is that कि she is just so real and just so pure that वो आपकी या तो दोस्ती होगी या तो फिर बिल्कुल नहीं होगी। तो आई एम ग्लैड कि यहाँ दोस्ती हो गई और पिक्चर बन गई, और वो कप्पू और सौम्या की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है। बट उसका एक्चुअली फुल क्रेडिट सारा को जाता है, बिकॉज शी इज दैट पर्सन, शी इज दैट इजी अ पर्सन। Sara, for you? Honestly, I don't think he's wrong. But there is an agency, right, in choosing किनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, किनके साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो I think विकी को देखते ही पता चल गया था that he is the person that I want to befriend. I think that he, honestly, being friends off screen is one thing, and he's being generous in his compliment. But ultimately, I think as an actor that is as experienced and as talented as he is, he would never come to set with that air. So it immediately made me comfortable to do whatever I can, and then he and Lakshman sir would together manage to get me to where I needed to be. But ultimately, it was the fact that he was so giving and non-judgmental.
as a person that it enabled totally is from my side. Looking forward for another film with both of you. Fantastic. After Thank Mumehi you. Shakkar. Thank you. Thank you. Okay.